तो आज हम आ गए हैं हमारे डे 10 वाले वीडियो पे एडवांस एक्सेल विद एआई पे, राइट। एंड वी आर गोइंग टू सी दी रियल टाइम रिपोर्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये जो एग्जांपल मैं लिया हूँ दैट इज फॉर द ट्रैवल डोमेन, where how much customers has called us and how much complaint numbers has been generated here. Later on, out of which the total complaint which has been closed, and out of which how much survey, I mean the customer has rated as a survey, I mean CSAT or DSAT, I mean detractors or promoters or CSAT, right? Average handle time is how much time the particular executive has taken on an average. I mean the entire executive has taken around 8.2 minutes, right, per call. If we talk about first contact resolution, which is short term we call it as FCR, first contact resolution or first call resolution, right? It means कि whenever the customers are facing any issue, they are calling us, and we are handling the issue, and we have resolved the query in within the first call. So these terms will be known as first contact resolution. And the moment the higher number you are resolving at first time, right? You there's a chances to get the CSAT on those kind of cases or calls you can consider, right? This is the quality score. Let's suppose an example that you have taken a call, and the call has been audited by a quality analyst, right? So they basically check your quality score on the call. So if it is between 0 to 100, 100 is very good, 100 to 90 is on an average. I mean the number which is required, that should be greater than 90% for any organization. Okay, this is the fixed out number. 90% should be at least the quality score for any kind of call which has been taken by an agent or executive, right? If the quality score is greater than 90, 92, 93, 94, 95, it means the quality score is good as per the requirement or up to the mark, right? Now schedule adherence is what? Let's take suppose an example that uh, you are supposed to report to the work by 9 a.m. in the morning, right? But you are not reporting at time, and you are reporting by 9:15, correct? So the moment when you will not report at 9 a.m. in the morning, instead of 9:15 you are reporting, correct? So it is impacting your schedule adherence. So we call it as schedule adherence. Okay. Now, what will happen? Why schedule adherence is important? Adherence is important because let's say an example that the moment when you are not available to the office at the office, right? And at that point of time, the call volume is a bit high, and nobody is available there to take the calls, attend the calls, right? So this will be directly impact on the business. This will be directly impact on the kind of process, we can say, right? And we are that is why we are not supposed to impact the schedule adherence. Okay. What is occupancy? Occupancy is 84.5%, means what the volume was a bit high. The the number of we can consider that the number of time, total time we are being away, right? We are on a ready mode to take the calls. So out of the total staffing hour, this will be known as an occupancy percentage. Okay. तो यहाँ पे क्या है कि जितना टाइम हम अवेल पे होते हैं कॉल पिक करने के लिए, राइट, या फिर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। आउट ऑफ विच मतलब जो आपका स्टाफिंग आवर है उसमें कितने टाइम आप अवेलेबल थे। ओके। सो ये होती है ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। नाउ एवरेज रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? इसको बोलते हैं ART, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम, जिसको हम कहते हैं कि मतलब कितने टाइम पे कोई कॉल को हम मतलब पिक कर लेते हैं। मान लो कि मेरे पास में एक कोई कंप्लेन आ गई, उस कंप्लेन को मैं कितने टाइम पे रेस्पॉन्ड कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल, मान लो कोई चैट प्रोसेस पे मैं अवेलेबल हूँ अभी, और कस्टमर ने एक चैट इनिशिएट करी, उस चैट पे जो रेस्पॉन्स है वो देने में मैंने कितना टाइम लगाया। या फिर आप ये कंसिडर कर लो, इसको हम इजी तरीके से बोल सकते हैं एवरेज स्पीड ऑफ आंसरिंग या एवरेज स्पीड ऑफ रिप्लाई। ठीक है। तो इसको एवरेज रेस्पॉन्स टाइम हम कहते हैं, विच इज रिफ्लेक्टिंग अराउंड 2.8 2.42, राइट। ये तो बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का जो लिमिट होता है 10 सेकंड 20 सेकंड का होता है। 2.8 मिनट इज अ बिट
far high. Now repeat contacts is what की repeat contact का मतलब होता है, let's say the customer has called us previously, he has raised a concern, right, but the concern has not been resolved and that is why he is calling once again. तो इसमें क्या होता है कि वो रिपीट कॉन्टैक्ट पे हम कंसिडर करते हैं, द नंबर ऑफ हाई रिपीट कॉल्स, there will be higher chances of getting the DSAT. I mean, the customers are a bit dissatisfied. That is why they are calling us repeatedly. So those kind of customer we have to consider as a red alert, और हमको priority पे जो issues होते हैं उनके वो solve करने की जरूरत होती है. Okay. Now this is the escalation rate कि अगर मेरे पास में इतने calls आए हैं, right, 18450 में से मेरे को दिख रहा है कि इतने कस्टमर्स जो है, मतलब 4.8% जो कस्टमर्स है, दे आर escalating the concern and all. Maybe there might be a possibility that they are asking for a supervisor call, they are asking for a manager call and all. They are going on a social media, they are writing on the social media about the the complaints which they have raised and that has not been solved by their executive and also these will comes under escalation rate. Okay. Now refund cases, अगर इतने calls मेरे पास में आ रहे हैं तो refund के कितने मेरे पास में कॉल्स आ रहे हैं. सो रिफंड के केसेस मेरे पास में 2350 जो केसेस हैं वो आए हुए हैं. दिस इज द ऑब्जर्वेशन. अभी बुकिंग मॉडिफिकेशन केसेस क्या है, तो यहाँ पे ना कुछ एनालिसिस है. जैसे मैं यहाँ पे ट्रैवल डोमेन का एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ. क्या होता है, कोई भी बिजनेस आप ले लो, वेदर इट इज ई कॉमर्स बिजनेस और इट इज एन ट्रैवल डोमेन बिजनेस, है ना. तो हर तरीके के बिजनेस में रिफंड इज द क्रिटिकल पैरामीटर. रिफंड में अगर ज्यादा मेरे पास में वॉल्यूम आ रहा है तो योर सीसैट वुड डेफिनेटली बी इम्पैक्टेड. इसीलिए रिफंड का एक ऐसा मतलब हैंडलिंग लोग बनाते हैं ना कि स्मूथली कस्टमर को वो सपोर्ट कर सके और इश्यूज जो आ रहे हैं वो सॉल्व करके हम भेज सके टाइमली. ठीक है. नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे बुकिंग मॉडिफिकेशन केसेस, अगर ट्रैवल डोमेन में आप काम कर रहे हो ना, मतलब मान लो कोई बुकिंग बनी है, लेट्स से कि होटल की बुकिंग बनी है या बस की बुकिंग बनी है, कार की बुकिंग बनी है, फ्लाइट की बुकिंग बनी है, वट एवर इट इज. बुकिंग मॉडिफिकेशन में हो गया कि डेट चेंज करनी है आपको या उसको रीस्केड्यूल करनी है आपको, राइट, और मान लो कैंसिल करके नया बुकिंग बनानी है, राइट. तो ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन के अंदर में आ जाती हैं. एंड यहाँ पे दिख रहा है हमें कि इसके जो कॉल्स हमारे पास में है वो आउट ऑफ 18,450 में से वी कैन सी कि मेरे पास में 3,120 कॉल्स जो है वो अप्रैल मंथ में आई हुई है, विच इज़ अ हायर कंट्रीब्यूशन. नाउ कैंसलेशन के केसेस आप देख लो, यहाँ पे 2,940 कॉल्स आए हुए हैं अप्रैल के मंथ में, विच इज ऑल्सो अ हायर कंट्रीब्यूशन. अब ये जो है ना, एक महीने का एजेंट काउंट हमने देख लिया, 48 है, 48 है, 48 है. अटेंडेंस कितना परसेंटेज है, सो दैट इज गुड. Shrinkage is reflecting as 24.5%, 22%, 21%. Shrinkage, the direct meaning of shrinkage क्या होता है आपका, एब्सेंटिज्म. कितना परसेंट बंदा रोस्टर्ड था किसी पर्टिकुलर डे पे ऑफिस आने के लिए, आउट ऑफ विच कितने ने मतलब कितने लोग प्रेजेंट हुए, ठीक है, काम करने के लिए. सो वो होता है श्रिंकेज परसेंटेज. अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो श्रिंकेज परसेंटेज इज रिफ्लेक्टिंग एज 24.5%. दिस इज फार फ्रॉम द टारगेट. मतलब जो टारगेट जो दिए जाते हैं ना, दैट इज ओनली 10 to 11 12% यू कैन कंसीडर कि चलो ठीक है जी. बट अगर इतना ज्यादा श्रिंकेज हाई हो रहा है, मतलब एब्सेंटिज्म हाई हो रहा है, तो इसका ये मतलब है इट इज अ रेड अलर्ट एंड वी हैव टू फिक्स इट आउट इमीडिएटली. नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि लेट्स से कि अगर ये एब्सेंटिज्म हाई है तो व्हाट कैन बी अ प्रॉब्लम. सो सॉरी. सो दिस इज हाउ वी चेक बेसिकली. ओके, अभी यहाँ पे थोड़ी चीजें हम चेक करते हैं. जैसे मंथ वाइज ये रिपोर्ट मेरे पास में है, तो अभी टोटल टिकट्स मैं चेक करूँ तो मेरे को अप्रैल मंथ में आई कैन सी कि 18,450 कॉल्स वी हैव रिसीव्ड. नाउ मंथ में 19,000 कॉल्स एंड देन फिर जून में 2,000 कॉल्स. तो वी कैन से कि यहाँ पे 500 का इंक्रीमेंट हुआ मई मंथ में कॉल्स वॉल्यूम के. फिर जून में देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट मतलब 900 कॉल्स जो है वॉल्यूम बढ़ गई, राइट.
अब वॉल्यूम क्योंकि बढ़ रहे हैं तो उसके वजह से मतलब थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सर्वे में रेस्पॉन्सेज भी उसी हिसाब से हमें दिख रहे हैं कि दिस इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। बट इसका जो माइलेज है वो मेरे को सी सैट में भी देखने को मिला है। द मंथ ऑफ अप्रैल हैज बीन क्लोज एट 90.8% एंड मंथ ऑफ मे इट वाज 92.4% एंड जून में 94.1%। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि मेरे पास में वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज, मतलब 500 500 या 900 कॉल्स मेरे पास में बढ़ रहे हैं, तो वी कैन सी कि उसका इम्पैक्ट मेरे को सी सैट रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। क्योंकि 900 केसेस अगर मैं ज्यादा क्लोज करूंगा तो 900 में से बहुत सारे कस्टमर्स हमें सी सैट भी रेट करेंगे, राइट। और मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है सी सैट आने का हमारे पास में। डिट्रैक्टर्स का क्या काउंट बढ़ा है, तो डिट्रैक्टर्स हम देख पा रहे हैं, डिट्रैक्टर्स मतलब होता है डीसैट। इसका जो काउंट है वो हम चेक कर पा रहे हैं कि ये भाई घटा है। घटा है मतलब इट इज गुड। कि मंथ ऑफ अप्रैल में वी वर हैविंग अराउंड 485 डीसैट। नाउ मंथ ऑफ मे में 427 कस्टमर्स जो है वो डिससेटिस्फाइड है। नाउ मंथ ऑफ जून में 349 कस्टमर डिससेटिस्फाइड है। इट इज अ गुड सिग्नल, गुड साइन। इसी तरीके से इंप्रूवमेंट जो होते हैं वो दिखाने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। ये जो अपने प्रोसेस में जो डिफेक्ट्स होते हैं उसको फिक्स करने के लिए, जब वो फिक्स हो जाते हैं तो फिर इसी तरीके से हमको इम्प्रूवमेंट चीज़ों पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है। कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा तो कस्टमर जो है डिससेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो घट जाएगा उनका। प्रमोटर्स, फिर एवरेज हैंडलिंग टाइम क्या है। तो एवरेज हैंडलिंग टाइम का मतलब होता है कि हम कितना टाइम ले रहे हैं किसी एक कस्टमर से बात करने में, राइट। मंथ ऑफ अप्रैल में वी कैन से कि ये जो है 8 मिनट का लगभग टाइम लग रहा है। वही मंथ ऑफ मई में हम देख रहे हैं तो थोड़ा टाइम घटा है, ऑलमोस्ट 30 सेकंड का टाइम घटा है। और अगर मैं चेक करूं मंथ ऑफ जून में तो इसमें भी मेरे को दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 5 सेकंड का जो टाइम है वो रिडक्शन हुआ है। तो टाइम अगर रिड्यूस हो रहा है इट इज अ गुड सिग्नल कि हम कम कम टाइम पे जो जो केसेस है कॉल्स है वो खत्म कर पा रहे हैं। तो क्योंकि कम कम टाइम पे हम अगर कॉल्स खत्म कर पा रहे हैं तो इट विल गिव अ गुड माइलेज ऑन द बिजनेस, ऑन द कॉल आंसरिंग एंड ऑल, राइट, हैंडलिंग द मोर कस्टमर्स एंड ऑल। वो चीजें होती हैं जी। 12 मिनट ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। लेट मी सी। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन FCR जिसको हम कहते हैं वो भी बहुत अच्छा है। मतलब इट इज़ अ गुड सिग्नल। 81.5% अप्रैल मंथ में अगर ये क्लोज हुआ है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 84.2%, 87.0% जून में। इसका ये मतलब है कि बहुत अच्छा मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको हम हैंडल करके अच्छे से उनकी जो क्वेरी है वो सॉल्व कर रहे हैं। और क्योंकि हमने हाँ, क्योंकि हमने जो इश्यूज है वो फर्स्ट कॉल पे ही रिजॉल्व करना मतलब प्रायोरिटी दिया, तो इसका माइलेज हमें सी सेट पे भी देखने को मिला, राइट। यहाँ पे क्वालिटी स्कोर अगर आप देखोगे ये भी बढ़ रहा है, मतलब दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन, है ना। और हर एक इंडस्ट्री जो परफॉर्मेंस देखती है ना, रिव्यू करती है, उनको यही चीज चाहिए होता है हर एक बिजनेस में कि हर एक चीज जो है वो इम्प्रूवमेंट ट्रेंड पे दिखना चाहिए। अगर कोई चीज है जो जो डिक्रीमेंट ट्रेंड में दिख रहा है, जो इम्प्रूवमेंट ट्रेंड पे नहीं है, तो उस पर हमें काम करना पड़ता है, राइट। शिफ्ट एडहेरेंस भी हमें ग्रीन दिख रहा है, मतलब 93 से 95, उसके बाद फिर 96 मंथ वाइज। ऑक्यूपेंसी जो है ये भी हमारा थोड़ा बढ़ा हुआ है, राइट। 84.5%, फिर 85.8%, 86.9% जून पे। तो ये बोल सकते हैं ऑक्यूपेंसी मतलब जो एजेंट है वो थोड़ा ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जा रहे हैं मंथ ऑन मंथ, मतलब क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा आ रही है ना, जिसकी वजह से जो एग्जीक्यूटिव जो एजेंट्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ सैड स्टोरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, हम बोल सकते हैं। बट हर एक चीज को हम पॉजिटिव वे पे अगर लेना चाहें, अगर वॉल्यूम मान लो बढ़ रहा है कोई बात नहीं, ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स वी आर हैंडलिंग, तो वी हैव द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सीसैट ऑन द हायर कॉल्स which we have answered, right? So these are the things we need to consider as well. बाकी ये एवरेज स्पीड ऑफ आंसरिंग टाइम जो होता है वो है जो कि बहुत ज़्यादा है, जो हमें रिड्यूस करने हैं। दिस इज नॉट ऑन दी अप टू द मार्क, वी कैन से 10-20 सेकंड का टारगेट होता है इसका। और रिपीट कॉन्टैक्ट्स की अगर हम बात करें तो रिपीट कॉन्टैक्ट्स में मेरे को दिख रहा है कि 1610 कस्टमर, 1420 और 1180, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। अब देखो ये रिड्यूस हो रहा है मतलब वी आर डूइंग गुड। अगर ये रिड्यूस नहीं होता इट मीन्स वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब मेरे पास में कस्टमर्स अगर कॉल कर ही रहे मंथ ऑन मंथ, ये बढ़ता चला जा रहा है रिपीट जो कस्टमर्स हैं, तो इसका इम्पैक्ट मेरे को सी सेट पे भी देखने को मिलता है। बट क्योंकि सी सेट मेरा बढ़ रहा है
देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि रिपीट कस्टमर्स के काउंट जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, दैट इज वाई। अगर रिपीट कस्टमर्स के जो काउंट है वो बड़े चले जाते हैं हमारे पास में, तो मेरे को सी सैट पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स विल प्रोबेबली बी डिससेटिस्फाइड, कस्टमर्स जो है वो आयरेट होंगे, राइट, बार बार उनको कॉल करना पड़ रहा है। तो ये चीजें जो है ना वो इम्पैक्ट करता है सी सैट को, है ना, क्योंकि कस्टमर की जो एफर्ट स्कोर होते हैं, कस्टमर बार बार अपना एफर्ट डाल रहा होता है इशू को सॉल्व कराने के लिए, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि कस्टमर एफर्ट लगा रहा है तो दे विल बी डिससेटिस्फाइड, और फिर वो उस हिसाब से रेटिंग करते हैं जी। ठीक है, तो हमको ये फिक्स करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ एस्केलेशन रेट रिडक्शन ट्रेंड पे है, विच इज गुड साइन। रिफंड के वॉल्यूम मैं देख रहा हूं तो बढ़ा चला जा रहा है, मतलब विच इज दिस इज नॉट अ गुड साइन। रिफंड के केसेस मेरे पास में ज्यादा आ रहे हैं, मतलब क्या, कोई भी आप रिफंड कस्टमर को हम प्रोवाइड कराते हैं, इट मीन्स कि वॉट एवर द सर्विसेज ही हैज ऑप्टेड फॉर वी नीड टू कैंसिल दैट एंड वी नीड टू प्रोवाइड द रिफंड अकॉर्डिंगली, है ना। हाँ, अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि मान लो चलो बीइंग एन इंटरमीडिएटर वी आर चार्जिंग समथिंग फॉर अ कैंसलेशन, तो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो देयर इज अ क्लाउज, मतलब वो किस तरीके से आप देख रहे हो। ठीक है, बुकिंग मॉडिफिकेशन के भी केसेस हमें दिख रहे हैं कि ये बड़े हैं, कैंसलेशन के भी केसेस जो है वो बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, राइट। यहाँ पे हमने देखा ना कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है मंथ ऑन मंथ, दैट इज वाई इनके काउंट भी बढ़े हुए हैं। बट एनीवे अगर ये बढ़ा हुआ है, वी आर हैंडलिंग द कस्टमर इफिशियंटली, कम टाइम पे कस्टमर्स को यहाँ पे देख रहे हैं कि कम टाइम ले करके कस्टमर्स को हम इश्यूज को सॉल्व करके दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सी सैट मेरा बढ़ाएगा। सो देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन द सी सैट, पॉजिटिव इम्पैक्ट वी कैन से। एजेंट काउंट मेरा हर मंथ में 48 था, यहाँ भी 48 था। जून में क्योंकि हमने थोड़ा देखा कि वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हाई हो गया, तो दो और हेड काउंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो ताकि मेरा जो वॉल्यूम है स्मूथली हम मैनेज कर सकें एंड ऑल। जो भी टास्क है, जो कंप्लेंट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, जो सर्विस रिक्वेस्ट हैं, वो सब हम टाइम पे हैंडल कर सकें, इसीलिए थोड़े हमको हेड काउंट जो है वो मैनेज करने पड़ते हैं, बैंडविड्थ हमें मैनेज करने पड़ते हैं, राइट। अटेंडेंस में देखूं इट इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड, अटेंडेंस हमारा ठीक है। बट वही श्रिंकेज में देखो, यानी एब्सेंटिज्म में देखो, तो ये बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, ये भी घटता चला जा रहा है, मतलब मंथ ऑफ अप्रैल वॉज वर्स्ट, ठीक है, बहुत खराब था, 24.5%। उसके बाद में मई में मेरे को देखने को मिल रहा है कि 22.8% जो है एब्सेंटिज्म रहा है, श्रिंकेज रहा है, एंड देन फिर 21.3% का श्रिंकेज रहा है जून में। बट देखो ये जो टारगेट होता है 10 से 11% का होता है, उससे ऊपर जा रहा है, इट इज़ अ रेड अलर्ट। तो ये हर मंथ में रेड है, हम इसको बोल सकते हैं दिस इज रेड। आप ये जो देख सकते हो ये थोड़ा सैड पार्ट है, बट हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस इज अ रेड अलर्ट एंड ऑल। ये वाला मेरा रेड है, क्योंकि जो टाइम होता है एवरेज स्पीड ऑफ आंसरिंग वो थोड़ा कम होता है ना, और हम इस पे ले रहे हैं ज़्यादा टाइम, सॉरी। तो देखो दिस इज हाउ वी चेक दी रिपोर्ट्स मंथ वाइज, है ना। और इसी तरीके से हमको जो रिपोर्ट है वो चेक करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आज कुछ सीखने को मिला होगा। ये दूसरी डेटा सेट जो दिखाने का मतलब यही था कि हम कैसे इसको कोरिलेट करते हैं, मंथ वाइज अगर रिपोर्ट देखना हो तो कैसे हम देखते हैं। इसका डेली रिपोर्ट भी बनता है, ठीक है, डे वाइज भी रिपोर्ट्स होते हैं, इसमें कुछ कीवर्ड्स हम लगाते हैं। कल वाली वीडियो में हम देखेंगे एक हैवी डेटा सेट हम लेकर के आएंगे, 3-4 महीने का डेटा, ओके, एंड उस पे डे वाइज डेटा लगाएंगे, मंथ वाइज लगाएंगे, वीक वाइज लगाएंगे, और हम चेक करेंगे कौन कौन से पैरामीटर पे क्या इंप्रूवमेंट है या फिर क्या एक्शन प्लान हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट, टू गेट द परफॉर्मेंस ऑन ट्रैक एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हैं जो हम करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्शन प्लान में हमें दिख रहा है कंडक्ट। अब इसको फिक्स मुझे करना है, मान लो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो देर आर सम वे टू फिक्स इट आउट। हम वीकली कोचिंग वगैरह प्रोवाइड कराएंगे जो एग्जीक्यूटिव्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उसका आरसीए वगैरह देखेंगे कि रिफंड और कैंसलेशन पे किस तरीके का कॉल्स मेरे पास में ज़्यादा आ रहा है, जिसके वजह से कुछ अगर इम्पैक्ट आया है तो वो देखेंगे हम। क्यूए का जो कैलिब्रेशन सेशन होता है, मान लो जो क्वालिटी स्कोर है वो अच्छा जा रहा है या फिर वो बुरा जा रहा है, इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें, तो हम कैलिब्रेशन सेशन भी रखते हैं, राइट। उस तरीके से देखते हैं कहाँ पे गैप है, क्या डिफेक्ट्स है मेरे प्रोसेस पे, क्यूए के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। डेली सीसैट का जो फीडबैक होता है, मान लो कुछ अगर मेरे पास में डीसैट आ गया तो वी नीड टू शेयर द फीडबैक ऑन डेली बेसिस। रिफ्रेशर नॉलेज होता है, राइट। मतलब
ये हमें ट्रेनिंग वगैरह डेली हम कंडक्ट कर सकते हैं, छोटा छोटा सेशंस हम कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि मोटिवेशन भी देना जरूरी है ना, अगर जो सी सैट से लेकर के आ रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करो, उनको उनके परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज कराना पड़ता है, राइट। देन ताकि वो मोटिवेट ऑन दे परफॉर्म वेल फर्दर। हमको एफसीआर पे फोकस करना पड़ेगा, यू नो। सेम डे पे कस्टमर आया तो उसके इशू को सेम डे पे क्लोज करके हमें भेजनी है। एएसटी जो है वो थोड़ा कम रखना पड़ेगा, मतलब कम टाइम पे हैंडल करके इश्यूज को सॉल्व करके हमें देनी है, राइट। स्केड्यूल अडेरेंस अगर हम ठीक करके रखते हैं, मतलब टाइमली अगर लोग आ करके लॉग इन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोसेस है वो स्मूथली रन करता है। एंड क्योंकि बैंडविड्थ का उतना प्रॉब्लम नहीं होगा तो स्मूथली हम सारी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं। सो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आज ये डिस्कस हमने कर लिया है। एंड उम्मीद करता हूँ कि यू आर फाइंडिंग इट एज अ जॉब ओरिएंटेड नॉलेज, ठीक है। और ये चीज़ें सीख करके आप फर्दर कहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कल वाला जैसे मैंने बताया कि हम वीकली मंथली जो भी रिपोर्ट्स है वो चेक करेंगे, तो प्लीज़ स्टे विथ एस के आर ओ लर्निंग। और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए, हमारे शॉर्ट्स भी आते ही रहते हैं, आप शॉर्ट्स जाओ चेक करो, वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हमारे आते रहते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उसमें। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।